हेलो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट लेट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सीरीज के अनदर वीडियो पर मैं आप लोग सभी को स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो पर मैं करूंगी पॉलिटिकल साइंस 2023 पेपर के एनालिसिस। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द सैलरी ऑफ गवर्नर इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। Moving to the next question, question number 2. A government may be called non-partisan if the law does not permit political parties, government officials are not members of political parties, government policies are decided by a direct democracy, all of the above. इसका correct option हो जाएगा D, all of the above for the question number 2. Then question number 3, amendment of which of the following provisions of Indian Constitution does not require a two-third majority in Parliament and the concurrence of half of the state? Mode and manner of the election of the President of India, extent of the executive power of the Union, provision relating to the citizenship of India. यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। Moving to the next question, question number 4. Which one of the following fundamental duties has been incorporated by the 86th Amendment Act 2002 to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to safeguard the public property and to abjure violence, to protect and improve natural environment, to provide opportunities for education to their children between the ages of 6 to 14 years by the parents or guardian? तो ऑप्शन डी will be correct for question number 4. Then question number 5 देख लेते हैं. The intention of the Constituent Assembly was to make the Supreme Court as the custodian of the federal scheme which the framers had visualized. Yes, correct. The Constitution, yes. The fundamental rights will be correct. So all of the above will be the correct code for the question number 5. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का क्वेश्चन है ये. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यस, जिसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर डिसरिगार्डिंग द पार्लियामेंट, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, for not taking the advice of the cabinet, then for not taking the advice of the PMO. इसका appropriate answer होगा, correct option will be B for the question number 7. Then 8 पर देख लेते हैं. The Committee of Indian Parliament which has been largest membership is the Estimates Committee, the Committee on Public Undertaking, Committee on Privileges, Public Accounts Committee. Correct option will be A, Estimates Committee सबसे बड़ा है. 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ राजमंडल कमिटी 1969 एंड इंटरस्टेट काउंसिल शुड बी सेट अप इमीडिएटली? क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, ये तो करेक्ट है. तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है, नॉट का क्वेश्चन है. ऑल रेसिडुअरी पावर्स शुड रिमेन विद द यूनियन गवर्नमेंट. नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. नॉट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. Then next question, question number 10. The deputy chairman of the Rajya Sabha is nominated by the president, elected by the Rajya Sabha from among its members, nominated by the chairman, elected by the elected members of the Rajya Sabha. तो correct option will be B for the question number 10. पूछा गया था कि deputy chairman of the Rajya Sabha is, क्या होता है deputy chairman? Elected by the Rajya Sabha from among its members. Who is considered the guardian of the public purse? पब्लिक पर्स के गार्जियन कौन होते हैं? पार्लियामेंट, कैग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कैग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये भी नॉट का क्वेश्चन है. न्यू सोशल मूवमेंट्स आर कंसर्न विथ नॉन मटेरियल फेनोमेना. इन द करेक्ट है. न्यू सोशल मूवमेंट्स आर कॉन्फ्लिक्टिव नॉट कोऑपरेटिव. नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बाकी भी देख लेते हैं. न्यू सोशल मूवमेंट्स वर्क फॉर इक्वलिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस करेक्ट.
न्यू सोशल मूवमेंट्स आर फॉलोअर ओरिएंटेड रेदर देन लीडर ओरिएंटेड। नहीं, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट दिया हुआ है थ्योरीज, कुछ थ्योरीज एंड ऑथर के नाम करेक्टली मैच करना है। डिपेंडेंसी थ्योरी दिया हुआ है समीर अमीन। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया हुआ है लुकियन पाई। थ्योरी ऑफ एलियनेशन कार्ल मार्क्स। थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी जॉन रॉल्स। यहाँ पर थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी जॉन रॉल्स नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 2 3। थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी जॉन लॉक हो सकता है, रॉल्स नहीं होगा। Question number 14. The word bureaucracy was first coined by Max Weber, Alexander Pope, M. Crozier, Vincent de Goni. इसका correct option Vincent de Goni है। Who appoints the Interstate Council in India? President of India, the Union Cabinet, the Prime Minister, the Union Home Minister. 15 number question. The President of India appoints the Interstate Council in India, जो कि इंडिया में establish हुई थी 2007 में। क्वेश्चन नंबर 16, हु डिस्क्राइब्स इंडियन इकोनॉमी एज ब्लॉक कार्ट कैपिटलिज्म? ये रजनी कोठारी या फिर अतुल कोहली, ग्रैनविल ऑस्टिन, लियोल्डन सुजान रुडोल्फ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लॉक कार्ट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं रजनी कोठारीज बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, नॉर्मेटिव थ्योरी, मार्क्सिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। 80 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं which of the former presidents of India was associated with the trade union movements? K.R. Narayanan, Dr. Zakir Hussain, V.V. Giri, Ramaswamy Venkataraman। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी एसोसिएटेड थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं विच स्टेट हैज नो पंचायती राज सिस्टम? आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, केरला। इसका करेक्ट ऑप्शन नागालैंड, जो कि पंचायती राज सिस्टम नहीं है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सोशियलिज्म? देख लेते हैं सोशियलिज्म एरोज as reaction to the rise and development of capitalism. Yes, ये तो करेक्ट है। सोशलिज्म tries to establish an egalitarian society, ये भी करेक्ट है। सोशलिज्म demands private ownership of the means of production। प्राइवेट ओनरशिप तो नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप तो नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Then moving to the next question 21. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between center and states falls under कौन होगा? Advisory jurisdiction, constitutional jurisdiction, original jurisdiction, appellate jurisdiction। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओरिजिनल jurisdiction। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं which one of the following is correct about NAM? Panchashil was the basis of NAM। करेक्ट है। ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन NAM occurred in the Asia African Conference in 1955। ये भी करेक्ट है। Non-aligned countries focused on the support of all determination, national independence and sovereignty of states। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसका all of the above will be correct for the question number 22। Moving to the question number 23, the term development administration was first used by U.L. Goswami, an Indian civil servant। ये ऑप्शन करेक्ट है। द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन emerged in the West in the beginning of 1960s। ये भी करेक्ट है, बट लिंक नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं assertion रीजन के है। पीटर ड्रकर was of the view that concept of management is generic and it cannot be confined in a particular business or profession। ये भी करेक्ट है। According to Peter Drucker, the term management is derived from urban administration। ये भी करेक्ट है 24 का, बट लिंक नहीं लग रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन आज के लास्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया हुआ है कि assertion and रीजन के क्वेश्चन है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज थियोरिटिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स एंड प्राइवेट मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हाँ ये करेक्ट है। The new public management poses a threat to public interest and
डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो यही तक था आज के वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पर मैं डिस्कस करूंगी 26 से लेके 50 तक क्वेश्चंस के एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।